اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے انداز میں کہ جسے سن کر آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ 1400 سال پہلے کے زمانے میں یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی ایک جھلک آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مؤلف ہیں جناب اعجاز احمد صاحب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کتاب کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہم انہیں نہیں پہچانتے، ہمارے برابر کے لوگ بھیجو۔ عرب میں جنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فوج کا بہادر میدان کے درمیان میں آ کر اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے خاندان کی خوبیاں اور بہادری بیان کرتا ہے، دشمن کو ڈرانے اور کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف شعر و شاعری سناتے ہوئے اپنے مقابل کو لڑائی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سب لوگ اپنی ذاتی بڑائی اور بہادری دکھانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کے لیے انفرادی بہادری سب سے اہم ہے۔ کوئی سپہ سالار جب دیکھے کہ انفرادی لڑائی میں اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو دشمن پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں لڑائی تلوار، تیر اور نیزے سے لڑی جاتی ہے، جس میں جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح دشمن کو قیدی بنایا جانا بہت آسان ہے۔ اس قسم کی لڑائی میں فوج کی تعداد بہت اہمیت رکھتی ہے۔ فوج کی تعداد اگر دشمن کے برابر نہ ہو تو جیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان فوج کی تعداد قریش مکہ کے مقابلے میں تیسرا حصہ ہے، جو عام لڑائی کی صورت میں شکست ہی کھاتی۔ جنگی اسلحہ اور ہتھیار دشمن کے پاس مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں۔ مال اور اسباب میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قریش مکہ بزدل نہیں اور جنگیں لڑنا ان کے لیے عام ہے۔ یہ لوگ تلواروں کے سائے میں ہی پلے بڑھے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، ہر وقت مرنے اور مارنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان سے جنگ کرنا کسی طور آسان نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ جنگ میں جوش کی بجائے دماغ اور صلاحیت سے کام لیتے ہیں۔ موت کے بارے میں عرب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت انسان کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کوئی میدان جنگ میں آئے گا تو وہ مارا نہیں جائے گا اگر اس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو۔ جنگوں میں بہادری دکھانے میں اس یقین کا بہت دخل ہے۔ اس وجہ سے عرب میدان جنگ میں موت کا خیال تک اپنے دماغ میں نہیں لاتے۔ وہ بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ سے لڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فوج کے پیچھے اونچے ٹیلے پر موجود ہیں۔ ان کے لیے ایک سایہ دار جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ جگہ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے سایہ کیے ہوئے ہے۔ عرب اسے عریش کہتے ہیں۔ اب اس جگہ پر مسجد عریش موجود ہے۔ عتبہ بن ربیعہ، حکیم بن حزام اور منبہ بن حجاج کی جنگ سے بچنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ابو جہل اور دوسرے قریشی سردار جنگ پر تلے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے عتبہ کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا ہے، عتبہ کو بھوک لگی ہے، اسے ستو پلاؤ۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے بھی عتبہ کو یہی بات کہی ہے۔ عتبہ غصے میں آ گیا ہے، ذرا بختر پہنی اور سر پر پہننے کے لیے خود ڈھونڈ رہا ہے۔ عتبہ کا سر کافی بڑا ہے، اسے کسی کا خود پورا نہیں آیا۔ عتبہ نے خود پہننے کی بجائے اپنے سر پر پگڑی باندھ لی ہے۔ سورج نکلتے ہی قریش مکہ کی طرف سے 3 فوجی میدان میں آ کر اپنی اور اپنے باپ دادا کی بہادری بیان کرنے لگے ہیں۔ ان اشعار کا مقصد جنگ کا جوش بڑھانا اور مسلمانوں پر رعب قائم کرنا ہے۔ قریش کی طرف سے آنے والے بہادر ہیں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ عتبہ اور شیبہ آپس میں بھائی جبکہ ولید عتبہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح تینوں کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ عتبہ اپنی فوج کا سپہ سالار ہے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آیا ہے کیونکہ ابو جہل نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا ہے۔ میدان کے درمیان میں پہنچ کر انہوں نے جنگ کا نعرہ لگایا ہے،
हल मिन मुबारज़, कौन है जो हमसे मुकाबला करेगा। जंग में अपनी सफ से आगे निकलकर जंग के लिए ललकारना और लड़ाई करना मुबारज़त कहलाता है। मुसलमान फौज से भी 3 बहादुर मैदान जंग में इनका मुकाबला करने के लिए निकले हैं। इनके नाम हैं औफ बिन इफ्रा, मुआज यानी मुअव्विज़ इब्ने इफ्रा, अब्दुल्ला बिन रवाहा। अब्दुल्ला बिन रवाहा ज़हीन शायर हैं। शायद इनका मैदान में इस वक्त निकलना अपनी फ़ौज को जोश दिलाना और इस महाज पर अपने कलाम से दुश्मन की बराबरी करना हो। औफ इब्ने अफरा यानी औफ बिन हारिस उन 6 अंसार में शामिल हैं जिन्होंने मक्का जाकर सबसे पहले ईमान कबूल किया। कुरैश कह रहे हैं, तुम लोग कौन हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते। मुसलमान मुजाहिद जवाब दे रहे हैं, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। कुरैश ने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते और तुमसे नहीं लड़ेंगे। हम मक्का के अशराफ हैं और अपने बराबर के लोगों से ही लड़ेंगे। हमारे मुकाबले में मक्का के अशराफ को भेजो। उमर बिन खत्ताब गरजदार आवाज में कह रहे हैं, सब मुसलमान बराबर हैं, इनमें किसी को दूसरे पर बर्तरी नहीं। कुरैश ने कहा, हमने मक्का के रहने वालों को लड़ने की दावत दी है और हम उन्हें पहचानते हैं। हम उन्हीं से लड़ेंगे, वो हमारे बराबर के लोग हैं। उतबा निहायत समझदार सरदार है। अपनी कौम के लोगों से लड़ने के मुतालबे में समझदारी ये है कि अंसार से जंग, कत्लो गारत, सियासी और दिफाई एतबार से मदीना मुनव्वरा के कबीलों से बराह रास्त दुश्मनी का बायस बन सकती है। खून और खून का बदला शुरू हो सकता है जो अपनी कौम से लड़ने की सूरत में नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है, मुसलमानों की तरफ से अली इब्ने अबी तालिब जाएं और वलीद से मुकाबला करें। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शैबा से मुकाबला करें और उबैदा बिन हारिस उतबा का मुकाबला करें। इस वक्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 25, हमज़ा की 55 और उबैदा की 65 साल है। उतबा की उम्र 58, शैबा की 65, जबकि वलीद की उम्र तारीख में महफूज नहीं मिली। अली और उबैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, जबकि हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। जंग की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के लोग सबसे पहले भेजे हैं। मुसलमान फ़ौज की तरफ से मुकाबले के लिए निकलने वाले तीनों बहादुरों ने खुद पहन रखे हैं, जिस वजह से इनकी पहचान नहीं हो रही। उतबा ने कहा, तुम लोग हमसे बात करो ताकि हम पहचान सकें तुम कौन हो। अगर तुम हमारे बराबर के लोग हुए तो हम तुमसे लड़ेंगे। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बनी हाशिम का शेर। उतबा ने कहा, मैं अपने सब हलीफों का शेर हूँ, तुम हमारे बराबर के हो, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे भतीजे अली इब्ने अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस। उतबा ने कहा, अब ठीक है, हमारा मुकाबला हमारे बराबर के लोगों से है। जंग बदर में सबसे पहले मैदान में आकर लड़ने वालों के मुतालिक अल्लाह करीम ने पैगाम भेजा है। सूरह अल-हज आयत नंबर 19। ये 2 गिरोह यानी ईमान लाने वाले और इनकार करने वाले अपने रब के बारे में लड़ रहे हैं। इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ने आग का लिबास यानी अजाब तैयार कर रखा है। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी सज़ा के तौर पर उंडेला जाएगा। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कसम उठाकर कहा करते थे कि ये आयत कुरैश के 6 लोगों के लिए नाजिल हुई, यानी हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा बिन हारिस और अली इब्ने अबी तालिब।
3 कुरैशी मुसलमानों की तरफ से और उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और वलीद बिन उत्बा कुरैश मक्का की तरफ से। जंग की इब्तिदा में अपने बेहतरीन फौजियों को भेजा जाता है ताकि दुश्मन पर रोब कायम किया जा सके। अली के मुकाबले में वलीद भी बहुत बहादुर और फुर्तीला है। मुकाबला सख्त होगा। लड़ाई शुरू हुई है। तीनों बहादुर अपने अपने दुश्मनों से तलवारों से लड़ाई कर रहे हैं। दोनों तरफ की फौजों की नजरें मैदान में होने वाली लड़ाई पर हैं। इस लड़ाई का नतीजा बहुत अहम है। ये क्या? अली ने अपनी तलवार से वलीद का खातिमा कर दिया है। अली की तलवार से वलीद का सर कटने के बाद जमीन पर आ गिरा है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि ऐसे लग रहा है जैसे वलीद मुकाबला किए बगैर ही मारा गया है। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपने मुखालिफ को कत्ल कर दिया है। इन तीनों में से उबैदा बिन हारिस ज्यादा उम्र के हैं। इनका और उत्बा का मुकाबला जारी है। दोनों ने एक दूसरे को जख्मी किया है। उबैदा की टांग उत्बा के वार से कट गई है। अली और हमजा अपने दुश्मन से फारिग हो चुके हैं। इस वक्त के जंगी उसूलों के मुताबिक उन्होंने उबैदा की मदद करते हुए उत्बा को भी मार डाला है। ये मुकाबला 3 फौजियों का दुश्मन के 3 फौजियों के दरमियान था। कुरैश मक्का को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। इनका सिपा सालार मारा गया है। इनके बहादुर एक लम्हे में जान गंवा चुके हैं। जंग की इब्तिदा ही अजीबो गरीब है। इन्होंने बेशुमार जंगें लड़ी हैं। पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इस मार्के में मुसलमानों का पल्ला वाज़े तौर पर भारी रहा, जिसने मुसलमानों के हौसले मजीद बुलंद कर दिए हैं। हमजा और अली उबैदा को उठा कर लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया है। उबैदा बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अगर आज चचा अबी तालिब जिंदा होते और मुझे इस हालत में देखते तो उन्हें पता चलता कि उनके अशआर का हकदार मैं हूँ। अबी तालिब के अशआर कुछ यूं हैं, खुदा के घर की कसम, तुमने झूठ बोला है कि हम मोहम्मद को छोड़ देंगे। ऐसा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक नेज़ों और तीरों से तुम हम पर हमला आवर नहीं होते। मोहम्मद को तुम्हारे हवाले करने से पहले हम अपने बच्चों और बीवियों को भूल चुके होंगे। हमारी लाशें मोहम्मद के इर्द गिर्द खाक आलूद पड़ी होंगी। मिट्टी हमारा बिछोना होगी। उबैदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहादत से महरूम रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। उबैदा बिन हारिस जख्मी हैं। इनकी मरहम पट्टी की जा रही है। उबैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान से लेटे हुए हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर अभी ईमान नहीं लाया। वो इस वक्त कुरैश की फ़ौज के साथ मैदान बदर में मौजूद है। एक ज़माने बाद अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, बदर की जंग में आप कई बार मेरी तलवार की जद में थे। मैंने आप पर तलवार नहीं चलाई। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें जवाब देते हैं, बेटा, अगर तुम मेरी तलवार की जद में एक बार भी आ जाते तो मैं अपना हाथ कभी ना रोकता। मेरे लिए हक और सच, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दुश्मनी में कोई रिश्ता अहम नहीं है। मैं तुम्हें दुश्मन की तरफ से लड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेटा समझकर माफ़ ना करता। जनाब, ये था हमारा आज का मौजू। हम इन्हें नहीं पहचानते, हमारे बराबर के लोग भेजो। अगला मौजू होगा, जो तेरा महबूब बंदा है तू उसकी मदद कर। सुनते रहिए सीरतुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।